Jai Shri Krishna everyone. Welcome back to our channel Shriji Learning Economics. Today we will talk about final goods and intermediate good. As we say the word final good, the word that comes, it's a combination of two words, final and good. So at first I'll explain you कि good होती क्या है. All the things which are tangible, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, these are the commodities. That like marker मेरे हाथ में ये क्या है? Good है. I can see it, I can touch it. So this is good. तो final good क्या है? Unit 1 के first chapter में पहला ही almost topic है कि final good और intermediate good. और इसमें difference का question आता है और most probably आपको question आएगा कि identify, आपको transaction दी होगी, आपने identify करना है कि ये final good है कि intermediate good है. तो आज मैं आपको एक trick बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल एकदम से पता चल जाएगा कि ये final good है कि intermediate good है. So here we go. Final good and intermediate. So final good के लिए आपने दो वर्ड याद रखने, FCI. FCI, final good means C and I. The goods which are meant for final consumption and final investment are known as final good. हमेशा हमें लगता था कि जो कंज्यूम हम करते हैं वही चीजें जो है हमारे क्या है फाइनल गुड है, बट फोकस ऑन दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट. फाइनल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो आर final good. So 2 points only. Final goods are those goods which are used, number 1 for final consumption and number 2 is final investment, FCI. That's it, the word FCI. And the other is intermediate. तो intermediate के लिए आपने I square याद रखना, IR. R square, I के लिए I stands for intermediate and here R square, RR. Here I'll write R square. Intermediate goods are those goods which are used as a raw material. जो as a raw material यूज होती है वो भी intermediate goods हैं और जो resale के लिए यूज होती है वो भी intermediate goods हैं. So basically सारा difference आपका इसी के ऊपर based है क्या? Final goods FCI and IR square और resale और raw material. Is that clear? इसी के बेस पे बेटा आपने डिफरेंस का क्वेश्चन बना लेना है. अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, ऐसे बहुत कम आता है. आपको क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई करना है आपने, राइट? सो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस के लिए आई जस्ट गिव यू वन वर्ड, एक ही वर्ड में आपको याद हो जाएगा एंड दैट इज MEVPN. MEVPN सीधा सीधा है, बहुत आसान है. जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ME वर्ड तो हमेशा अपने दिमाग में डाल ही लेना. M stands for meaning, E stands for example. हर डिफरेंस में एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डिफरेंस लेते हो बेटा, डिफरेंस हमेशा बेसिस के साथ दिया करो. क्योंकि कई बार आपको पेपर, आप अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो उन्होंने बोला होता है डिफरेंशिएट दिस एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो द mnemonic here is MEVPN. Me stands for meaning which we have already done. क्या है meaning? FCI, right? E meaning for intermediate. IR square meant for resale and raw material. Then E example. What is the example of final good? कोई भी चीज ले लो, marker in my hand, fan, blackboard, कुछ भी जो चीजें हम यूज करते हैं वो क्या है हमारी, हम जो यूज करते हैं वो फाइनल गुड है. कुछ भी एग्जांपल ले लो. एंड देन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड में जब भी ट्रांजैक्शन आपको आएगी आपके दिमाग में दो ही चीजें लगती हैं. क्या ये रीसेल के लिए आई है तो क्या है इंटरमीडिएट, क्या रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट. अगर मैं कहूँ मशीनरी है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि मशीनरी इज ऑलवेज द फाइनल गुड. नो, मशीनरी इज नॉट ऑलवेज द फाइनल गुड. मशीनरी हमेशा फाइनल गुड नहीं है. अगर मशीनरी इज यूज्ड एज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट
वेंडर ने खरीदी है फॉर रीसेल बेटा, तो वो क्या है आपकी इंटरमीडिएट। क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल मशीन्स आर फाइनल गुड, नो, it depends upon end use. Again the question, the what's the question है ये, what is the basic principle behind the distinguish between final good and intermediate good. बहुत important है कि difference किस बेस पे करें हम, क्या criteria लेते हैं. So let me tell you, end use. End use is the criteria to distinguish between, to differentiate between final good and intermediate good. Is that fine? So end use. अब हम देखें कि मैम वो कैसे, final good में end use कौन है, C and I, और उसमें end use क्या है, R square, raw material and resale. So अभी मैंने आपको बताया, मशीन की बात बताई, और मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंस का क्राइटेरिया क्या है वो बताया. एंड नाउ वी अगेन गो बैक टू द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. मैंने बोला मी, VPN, मी से क्या आ गया आपका मीनिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. ई से एग्जांपल, फाइनल की मैंने बता दी, इंटरमीडिएट की बता दो आप. परचेज ऑफ लेट इट बी रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट है. परचेज ऑफ अ कार बाय कार डीलर, अगेन रीसेल, इंटरमीडिएट है, एग्जांपल हो गया. वी वैल्यू एडिशन, हमेशा याद रखना जो फाइनल गुड में गुड है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशन? अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर ओनली. ये मार्कर मैंने खरीद लिया, क्या मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती हूँ कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए? नो. अगर वुड में लेती हूँ, वुड को मैंने उसमें वैल्यू ऐड की, वुड का मैंने लेक्चर स्टैंड बनाया, वुड का मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया, वुड की मैंने चेयर बनाई, तो मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, नॉट इन द फाइनल गुड्स. एंड देन P, that we all know, intermediate goods are within the production boundary and final goods are outside the production boundary. Then N stands for national income. Final goods are included in the national income and intermediate goods are not included in the national income. So this is all about the difference. We have done difference between final goods and intermediate goods. We have done the criteria for final goods and intermediate goods. We have done one example कि all machineries are final goods or intermediate goods. And now we'll do the types of the final good. हमेशा प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वाला. ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि इसको फाइनल गुड नहीं इंटरमीडिएट गुड ले लेते हैं. इज दैट फाइन? अब है फाइनल गुड के आगे टाइप्स कितने हैं बेटा? फाइनल गुड्स यहीं से बने हैं. फाइनल गुड्स के टाइप्स क्या बन गए? एक बन गया आपका कंज्यूमर गुड्स और एक बन गया प्रोड्यूसर गुड्स. और इसी को आपने बोला कैपिटल गुड्स. इसमें एक और क्वेश्चन भी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, डिफेंड और रिफ्यूज. ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, डिफेंड और रिफ्यूज. इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंज्यूमर गुड्स पे आ जाते हैं. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द final consumer for the satisfaction, and producer goods are those goods which are used for the further production, right? So consumer goods again are divided into durable, single use and semi durable. Durable, semi durable and non durable, right? ड्यूरेबल, आप हमारे घर में एसी है, इट लास्ट फॉर द इयर्स. जो चीज सालों साल चलती है और कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, ये प्रोड्यूसर नहीं है. सो दैट विल बी टर्म्ड एट ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये. कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल क्लोथ्स विद इन अ ईयर, एक साल तक यूनिफॉर्म, दैट कम्स अंडर सेमी ड्यूरेबल. एंड देन देयर कम्स नॉन ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल में क्या? मिल्क है, हमने खाया खत्म हो गया.
ब्रेड है, बटर है, जो सिंगल यूज फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जो एक बार खाएं और खत्म हो जाएं, वो क्या है आपकी नॉन ड्यूरेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स हमने कर लिए। प्रोड्यूसर गुड्स आई हैव टोल्ड यू व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर। अगर मैं बोलूं कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में बेटा डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका निमोनिक है अम्यून, ठीक है। अम्यून में क्या आना है आपका, पहले मी तो आपने याद रखना, एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग, राइट। मीनिंग क्या, कंज्यूमर गुड का मीनिंग अभी हमने कर लिया, प्रोड्यूसर गुड का मीनिंग हमने कर लिया। एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स की मैंने कितनी ज्यादा आपको दे दिया, चाहे सिंगल यूज दो, चाहे आप सिंगल यूज दो, चाहे ड्यूरेबल दो, चाहे सेमी ड्यूरेबल दो, कोई भी दे सकते हो, राइट। मीनिंग हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे क्या है, यू, यू स्टैंड्स फॉर यूज। तो यूज क्या है, जो कंज्यूमर गुड का यूज क्या है, फाइनल कंजम्पशन, और प्रोड्यूसर गुड का यूज क्या है, फाइनल प्रोडक्शन। मींस दिस यूज इज फॉर द कंजम्पशन एंड द यूज ऑफ द प्रोड्यूसर गुड इज फॉर प्रोडक्शन। यू हो गया, यू मैंने 2 बार लिखा यहाँ पर। और सेकंड है यूजर कौन है, सो कंज्यूमर गुड का यूजर कौन है बेटा, कंज्यूमर गुड का यूजर है कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर गुड का यूजर कौन है, प्रोड्यूसर्स। सो आई इम्पैक्ट क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है वेलफेयर पे। जब हम कुछ खा रहे हैं तो हमारा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। सो इम्पैक्ट, कंज्यूमर गुड का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वेलफेयर पे। प्रोड्यूसर गुड्स का वेलफेयर किस पे पड़ेगा, प्रोडक्शन पे, राइट। सो आई हो गया, एम हो गया, यू हो गया, एंड देन अदर इज नेचर। नेचर में आप बोल सकते हो कि नेचर में यू कैन गिव द टाइप्स दैट इट मे बी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल, एंड दीज आर कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। सो ये ड्यूरेबल है और इसके अंदर सारे आ जाएंगे। सो हियर अगेन विल रिवाइज द निमोनिक। क्या निमोनिक है, अम्यून। द निमोनिक इज अम्यून। अम्यून मतलब मीनिंग आना है, एग्जाम्पल आना है, इम्पैक्ट आना है, यूजर आना है, यूज आना है, और नेचर आना है। दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड। एंड द नेक्स्ट इज, मैंने बोला था आपको, ऑल, ये आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स और ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। तो हमेशा याद रखना ये प्रोड्यूसर गुड, आप बेटा प्रोड्यूसर हो, मालूम मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल भी यूज करूंगी और मैं कैपिटल गुड भी यूज करूंगी। बात समझ आई है, रॉ मटेरियल भी और कैपिटल गुड भी। पर कैपिटल गुड जो है हमारी क्या है, क्या है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। इसका मतलब है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड हमेशा। और एस ए सी, जब ऑल कैपिटल पहले आएगा ना तो ठीक है, ऑल कैपिटल गुड्स क्या है आपकी, प्रोड्यूसर गुड्स है, राइट। इज दैट ओके। सो ऑल कैपिटल गुड्स क्या है आपकी, ऑल कैपिटल गुड्स आर आपकी प्रोड्यूसर गुड्स है, इज दैट फाइन। एंड देन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों आना है, आपके रॉ मटेरियल भी आना है और आपका कैपिटल गुड्स भी आना है, इज दैट फाइन। सो अगर क्वेश्चन आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, देन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यस, क्योंकि कैपिटल गुड के मीनिंग में ही आता है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट all producer goods are not, all producer goods are not capital goods। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में आपका क्या आता है, रॉ मटेरियल भी आता है जो कि ड्यूरेबल नहीं है। इज दैट क्लियर। सो इफ यू वांट द entire flow chart of this, so this will be given in the description box. Thank you so much. God bless you. Jai Shri Krishna.